لوگوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے جو پروگرام کیا سریتا جی کے ساتھ وہ اتنا زبردست رہا کہ آپ تمام لوگوں نے پسند کیا. ہم دوبارہ سریتا جی سے اس معاملے میں گفتگو کریں گے سیما کو لے کر کہ رام مندر کا ادگھاٹن بھی ہو گیا اور اس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جانے کے, یہ کیا کچھ تھا ہم اس بارے میں بھی جانیں گے سریتا جی سے. تو سب سے پہلے سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ, دھنیہ واد, جے ہند. اچھا سر, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ رام مندر پر جانے کا جو اتنا بڑا پلان کیا گیا اے پی سنگھ کی طرف سے بھی اور سیما نے بھی میڈیا کو جو بولا, یہ کیا تھا سب کچھ, گئے تو نہیں, پھر کیوں بولا گیا؟ یہ ہم جیسے آپ جیسے جو لوگ آپ لوگ میڈیا میں بات کرتے ہیں, ہم لوگ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو برگ لانے کے لیے, باقی ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہے وکٹم ہے تو وہ نہیں جا سکتی, اس کو بیل پہ چھوڑا ہوا ہے اور بیل پہ بھی اس کو بچوں کے حوالے سے چھوڑا گیا ہے, ادروائز تو اس نے جیل میں رہنا تھا. بس یہ ہے کہ سیما حیدر کو بیوقوف بنایا گیا کہ ہم اپلیکیشن ڈال رہے ہیں, ہم آپ کے لیے اپلیکیشن ڈالتے ہیں, اور وہ اتنی دور تک, ہماری سرکار اتنی فالتو نہیں ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں پولیس والے ہیں ہمارے جو اس کے رکشا کرنے کے لیے جائیں گے, اس کے باڈی گارڈ بن کے جائیں گے, اتنے فالتو نہیں ہے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہماری فورس ہی وہاں پہ اتنی چاہیے تھی کہ وہاں کے لیے ہی کم پڑ رہی تھی. ایک پھر جہاں سوال تک ہے, میں جاننا بھی چاہتا ہوں, پبلک بھی جاننا چاہتی ہے, جس کی کشمکش میں سارے ہی ہے, اور یہ سارا انیشل اسٹیج تھا جب یہ سارا کیس بنا. یہ سوال کا جواب اگر آپ مجھے دے پائیں ضرور. کہ 5 لوگ ہندوستان کی باؤنڈری میں داخل ہو گئے نیپال سے انلیگل وے میں, انڈیا کی فورس دنیا کی مانی جانی فورس کہلائی جاتی ہے, تو یہ کس طرح ہوا کہ یہ 5 لوگ نظر نہیں آئے فورسز کو اور یہ اندر داخل ہو گئی؟ بالکل نظر آئے, تبھی تو 2 لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا, صرف 2 اچھا, لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا. ہاں, 2 لوگ سسپینڈ ہوئے اور جتنے لوگوں کو بچا سکتے تھے بچایا ہے. اے پی سنگھ جی ویسے ہی قبول کر چکے ہیں ایک چینل پہ, چاہے انہوں نے غصے میں بولا کہ بھئی میرے سے اتنے سوالات کر رہے ہیں, میرے کو اتنا وہ کر رہے ہیں, اریٹیٹ کر رہے ہیں. ہم جیسے اریٹیٹ کرنے کے لیے بہت بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں تو بالکل. بیسیکلی بیٹھی ہوئی ہوں. آپ آئے تو صحیح, ایک بار آمنا سامنا تو کریں, پھر پتا چلے گا نا میں کہ کون ٹو بی سچ ہے کون آنیسٹ جھوٹ ہے. کلیپ کرتا ہوں, آپ لوگوں کو داد دیتا ہوں جس بریونیس سے آپ لوگ ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہ بالکل بات کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دیشوں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اس طرح سے یہ جو کام کیا گیا کہ ایک گھسپیٹی کسی بھی ملک میں چلا جائے اور کوئی بھی کام ہو جاتا ہے تو الزام آپ کو بھی پتا پاکستان پہ لگنا ہے کہ یہ پاکستان سے آئی ہوئی تھی کوئی ایسا. ہماری بھی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس سے پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے, پھر آپ اس کو بھلے اپنے پاس رکھیں یا جیل میں ڈالیں. بچوں کے لیے جتنے بھی یوٹیوبر سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بالکل بچوں کی بچے, بالکل. ورنہ سیما سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اب تو وہ جہاں جانا چاہے. دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سب نہیں, چیزیں دیکھنے کے بعد, پہلے والے جی سوال کو پھر تھوڑا سا میں کریکٹ کر لوں آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو جو کریں. آپ نے کوشچن پوچھا کہ کیونکہ 2 لوگ جو سسپینڈ ہوئے, وہ لوگ سسپینڈ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ تھوڑے سے نچلی پوسٹ پہ تھے. جو بڑی پوسٹوں پہ تھے وہ اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ ان کے جو جاننے پہچاننے والے تھے وہ بڑے پوسٹ پہ ہیں, تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ان کو رہنے دو. باقی جو یہ بچوں کا کھیل کھیل کے آئی, تو بچوں کو اس نے خود اپنے منہ سے قبول کیا کہ بچے میرے بیمار ہو گئے تھے, تو اس لیے پولیس والوں نے کچھ پوچھا نہیں. اور جو ہوتا ہے جب پاکستان سے یہ یہاں آ رہی تھی, تو کچھ اس کے پاس ایک کوڈ ورڈ تھا, اس کوڈ ورڈ کو اس نے استعمال کیا, اس کوڈ ورڈ کے دوارا یہ یہاں آئی, اور ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے اشاروں پہ یہ آئی ہے, نہیں تو اس کے بس کی نہیں تھی. جی میڈم, دوسرا سوال یہ کہ آپ بھی جانتے ہو, اور یہ میں واحد بندہ تھا جس نے سب سے پہلے روشن علی عظیم صاحب سے انٹرویو کیا تھا, آپ سب نے ہی دیکھا تھا, وہ جی انہوں نے بھی اس بات پہ یہ بات واضح کی تھی کہ 7,000 کچھ میسیجز تھے جس میں کچھ کوڈز بھی ملے اے ٹی ایس کو, جی. وہ میسیجز ڈیلیٹ ہونا اور یہ شواہد ملنا, یہ سب کچھ کس زاویے میں آپ اس کو دیکھ رہی ہیں؟ اب جس حساب سے سیما حیدر بھی بول رہی ہے کہ 4 سال سے وہ حیدر بھائی کے رابطے میں نہیں تھی, تو میں بھی 4 سال سے یہ پھر اے پی سنگھ جی کے رابطے میں تھی. 4 ٹھیک ہو سال گیا, میں کتنے سارے میسیجز ہو سکتے ہیں. اگر صحیح کہہ رہی ہیں ان آپ, بالکل. میسیجز میں اگر کچھ بڑی جیسے کہ اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی بڑے بڑے عہدے والوں کو, بڑے بڑے جو ہمارے نامی گرامی جو لوگ ہیں ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی,
कुछ तो मकसद होगा। तो 7,000 ही, वो 7,000 जैसे उन्होंने बासित अली जी ने बोला 7,000, पर वो 7,000 नहीं, उससे और ज्यादा थे जिनको रिकवर करने में एटीएस को काफी टाइम लगा। लेकिन वो सारे रिकवर हो गए हैं और अभी एटीएस बस ये चाहती है कि ये कहीं कुछ ऐसा काम करे जिससे हमें ये पकड़ में आ जाए और उसके बाद हम बच्चों को डिपोर्ट कर दें। इसको चाहे यहाँ की जेल में डालें, चाहे आप लोगों के पास सौंपे। लेकिन हाँ, इसका ये था। और इतनी बड़ी अच्छी, मतलब ये इंटेलिजेंट खोपड़ी तो खैर जिन्होंने चलाई उन्होंने चलाई। जब ये एरोप्लेन में बैठी तो माशाल्लाह इसकी खोपड़ी का तो क्या कहना। इसने अपना नेट नहीं चलाया, इसने नई सिम ली, इसने नई सिम चलाई, जो पुरानी सिम थी वो तोड़ दी और नई सिम चला के इसने फिर किसी से वाईफाई लिया, वाईफाई कनेक्ट करके, जो कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि इससे उसने सोचा कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंडिया चांद पे पहुंच गया तो इंडिया क्या नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो वो इसी से जुड़ता सारी हुआ जो सवाल मैं आपसे फोन तोड़े गए थे। जी, इसी से जुड़ता हुआ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। ना तो आवाम आज बेवकूफ है और ना ही ये कोई पुराना दौर है जहां पर आपको पता नहीं चलता। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर कोई बहुत बड़ी मूवी भी बनाई जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कारीगरी की गई है, इसके अंदर क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। 5वीं पास या 5वीं फेल होने का दावा करने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है मैडम? हाँ, होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सीमा जी हैदर ने उसका एग्जाम्पल सेट कर दिया ना। जो कह रही थी, जिसने फर्स्ट अपनी पहली उसमें बोला था, जब उसके पास चैनल वाले गए थे बड़े हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के, तो इसने तब बोला था कि जब बेनर्जी भुट्टो जी की जब सरकार थी, उस टाइम पे आपके यहाँ पे घर घर में पढ़ाए जाते थे। जी लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर में टीचरें आया करती थी। तो ये 5वीं पढ़ी हुई है, बट ये 4 साल से इसको ट्रेनिंग दी गई है। 4 साल से ये बच्चों को छोड़ के इधर-उधर जाना, जैसे नेपाल तक आना, फिर दुबई जाना, ये सब ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये 5वीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ ट्रेनिंग मिलती है, के दौरान साफ-साफ पता चलता है कि उसको ट्रेनिंग दी गई है। और 4 साल से जो ट्रेनिंग दी गई है, ये उस 4 साल का वो है। इंग्लिश के वर्ड बोलना, अभी तो आजकल तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग गई है। आजकल जी तो बिल्कुल एग्जैक्टली। काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गई है। अच्छा मैडम, मैं इसी सवाल से जुड़ते हुए अपनी इंडियन दोस्तों को, इंडियन फैमिली को एक पैगाम देना चाहता हूँ। तो सिंध का तालीमी निजाम बिल्कुल अच्छा नहीं है जिस पर ये कहा जाता है कि 5वीं। यकीन मानिए कि अगर ये पंजाब की बात करती ना तो शायद हम मान लेते, क्योंकि पंजाब का इंटर पास लड़का भी ना उसका एक मैट्रिक पास का भी बड़ा लेवल होता है। और यहाँ का जो ग्रेजुएट होता है ना सिंध का, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो पढ़ाई का निजाम अच्छा नहीं है। तो सिस्टर्स के ऊपर इस इन्होंने बात की कि मेरी सिस्टर जो है वो रीमा का जिक्र ना करें, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और रीमा की जब ऑडियो निकलती है तो ये मुकर जाती, मेरी तो वो बहन ही नहीं है। ये रीमा को पहचानने से मना कर देती है, रिंद को पहचानने से मना कर देती है, भाई को, अपने भाई की, अपना जो सगा भाई है जिसके लिए इसने जॉब लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिया, उसको भूल जाती है। ये तो हर चीज भूल जाती है। जिस मुल्क का इसने 40 साल नमक खाया, उस मुल्क को भूल जाती है। जिस हस्बैंड को से इसने शादी की, एक मिस कॉल पे इसको प्यार हुआ था, आज वो मुकर रही है कि नहीं, प्यार नहीं हुआ है। खैर वो भी छोड़िए। जिस हस्बैंड से इसको 4 बच्चे हुए, उसको पहचानने से मना कर रही है, कह रही है कि ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। अब पता नहीं कहाँ से लाई है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बोला और अभी भी मैं बोल रही हूँ, एक माँ को ही पता होता है कि मेरे मेरे बच्चों का बाप कौन है, तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल पता है, तो लाए सामने कौन है। अगर हैदर भाई नहीं है तो बेचारा बायोलॉजिकल बाप हैदर भाई है, वो बेफालतू में उसको बना रही है। और जिस तरह हर चीज के लिए वो झूठ बोल रही है। और यहाँ पे आए हुए बंदी को 5-6 महीने हुए और यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट आई, जिसको सुन के बहुत ताजुब भी हुआ हमें, और लगा कि यार, मतलब इतना अपने मुल्क के लिए कोई इतनी गद्दारी कैसे कर सकता है कि मैं भारत से कभी बेवफाई नहीं करूंगी, मैंने यहाँ का नमक खाया है। तो क्या तूने पाकिस्तान में क्या खाया था फिर? पाकिस्तान में पली बड़ी, तो वहां की पैदाइश है, वहां तूने नमक नहीं खाया? दुनिया वहां का बिल्कुल नमक खा रही है। नमक बिल्कुल। तो वहीं बनता यहाँ तो है नमक ज्यादा। की कान है। बिल्कुल वहां नमक तो की कान नमक है की यहाँ पर खान है। ज्यादा। तो हमें बिल्कुल ये बहुत, मतलब एक झूठ बोलने के लिए उसको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं। हर एक स्टेटमेंट उसको सवाल मेरा अलग, और है। एक ही सवाल का। जी
इसी से कनेक्ट करते हुए एक सवाल पूछता हूँ, आपने अभी रिसेंटली देखा कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जो बच्चा फरहान है, जिसका नाम इन्होंने चेंज करके राज रख लिया है, जी जब उस बच्चे से, मुझे ये नहीं पता कि वो उनसे क्या बुलवाया गया, लेकिन आपके मजहब के मुताबिक उसने कुछ पढ़ा था, जी हिंदू धर्म के मुताबिक, जी हनुमान इतने से चालीसा। कम अरसे के, जी, इतने से कम अरसे के अंदर उसे बच्चे से वो याद करवा दिया गया। लेकिन जब सीमा से पूछा जाता है 5 नमाज आप जानती हैं, ना उसको कलमे का पता, ना उसको नमाज का पता, ये क्यों घुमाया जा रहा है कौम को इतना? पूरी 2 स्टेट्स को घुमाया जा रहा है बुरे तरीके से। आपको लगता है कि उसको नमाज नहीं आती है? यदि बिल्कुल आती होगी तो क्यों मुकरा जा रहा है? बिल्कुल उसको आती है। वो ये दिखाना चाहती है कि मैं एक सनातनी हो गई हूँ। लेकिन सनातनी होने के बावजूद हम भी कुरान का ज्ञान रखते हैं। आप लोगों का जो है जो जैसे अभी आप लोग आपने वो करते माशाल्लाह हैं, बोला, हम भी अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह को मान हम अल्लाह को ना मानने वाले कौन होते हैं? उस अल्लाह ने हमें एक बिल्कुल सही, बनाया है। हमने उस अल्लाह को बिल्कुल, बाँटा है। भगवान भी वही है, ईश्वर भी वही है, अल्लाह भी वही है। तो हम लोगों ने उनको बाँटा है, उन्होंने हमें नहीं बाँटा। तो वो एक सो कॉल इतनी भारतीय नारी दिखाने का और इतनी मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, तो अब मैं मुस्लिम वर्ड नहीं बोलूँगी, जबकि वो एक बार अल्लाह बोल के और उसके बाद उसपे इतना कंट्रोवर्सी हो गई थी और बिल्कुल उसको सफाई देनी पड़ी। क्यों सफाई देनी पड़ी? ठीक है, मान ना कि तू बिल्कुल, मुस्लिम थी। मैं तो तेरे को तब बिल्कुल, मानूँ कि तू अपने आप को मुस्लिम माने, ठीक है, तू सनातनी सनातनी बनती है। ख़ैर पहले तो वो सनातनी कभी नहीं बन सकती। बिल्कुल, इतना मैं आपको बता दूँ वो सनातनी कभी नहीं बन सकती, जो यहाँ आने के बाद जो कहती है कि जब से मैं सचिन के साथ राब्ते में आई 2020, 20 में 21 में जब भी व्हाटएवर तो इसने बोला कि मैंने मांस मच्छी ये मैंने ना मांस खाना छोड़ दिया था। लेकिन इसकी आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाएँगे तो वहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि आई लव चिकन और 7 मार्च 2023 का। क्या बात है! तब कहाँ कितना हाँ, तो तब का कितनी हम बड़ी आपने एक-एक इसकी बात को पकड़ा है, मैं एक-एक चीज़ पे एप्रिशिएट करता हूँ। एक-एक चीज़ पे इसको सचिन के घर में एक दिन इसका झगड़ा हो गया। आपके चैनल पे आज पहली बार बोल रही हूँ, तनवीर भाई के चैनल पे बोल चुकी हूँ, अरशद भाई के चैनल पे बोल चुकी हूँ, बाकायदा डिबेट्स में बोल चुकी हूँ। इसका इतना बड़ा झगड़ा होता है घर में कि मैं डेली-डेली ये घास-फूस नहीं खा सकती, डेली-डेली ये दाल नहीं खा सकती। मुझे नॉन-वेज चाहिए। फिर उसको एपी सिंह जी को फ़ोन किया जाता है और एपी सिंह जी अपनी गाड़ी में आते हैं और इसको होटल ले जाते हैं और होटल में जो भी इसको खाना होता है, यहाँ वो चीज़ नहीं मिलती है जो वो माँग रही थी। हाँ, पर चिकन खा के इसको काम चलाना पड़ा, तो तब कहाँ गई वो सनातनी? मैं आपको बीच में से रोकते हुए तालियों का कहूँगा कि माशा आप इतना इस केस में डीप में हैं कि आप इनके घर की भी इन्फॉर्मेशन निकाल बिल्कुल। के ले आएँगे। मैं आपको बता सकती हूँ जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन कितने बजे के से कितने बजे तक ये घर से बाहर थी, कितने बजे इनकी पूजा खत्म हुई और कितने बजे ये वहाँ फार्म हाउस पे गई, कितने बजे तक फार्म हाउस से घर वापस आई। फिर घर वापस आई उस दिन भी इसने मीडिया के सामने लप्पू को चांटा मारा था दिन में, रात को फिर झगड़ा हुआ। मैं हर चीज़ आपको बता सकती हूँ, हर चीज़, एक-एक चीज़।